زندگی آسان بنانے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، ایک قسم کا معیار ہونا چاہیے۔ ہم کس طرح زندگی گزارے؟ یہ مومن، وہ مومن، یہ مومن، وہ مومن، ہر ایک مومن منا پھرتا ہے۔ ذرا کبھی اپنے اس مومن ہونے کا، ایمان کا ذرا تلاش کرو، اس کو ترازو میں ڈالو، فرق کو جانچ لو۔ کیا تمہارا ایمان اس معیار کا ہے کہ تمہیں جنت لے جائے؟ تمہارا ایمان اس معیار کا ہے کہ تمہیں اللہ سے ملوائے؟ کیا تمہارے ایمان میں وہ زور اور طاقت ہے کہ تمہیں عذابوں سے نجات دے؟ فرق تو صحیح، اور ایمان کا فرقنا، ایمان کا جانچنا اور ایمان کا ترازو رکھنا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان مجھے چاہیے صحابہ جیسے مثل ما آمنتم، ان کی طرح ایمان چاہیے، ایمان ابو بکر کی طرح اللہ کو چاہیے جس میں صداقت ہی صداقت ہو۔ اللہ کو ایمان عمر جیسا چاہیے جس میں عدل، انصاف، شجاعت، بہادری ہو۔ اللہ کو ایمان عثمان جیسا چاہیے جس میں حیا، سخاوت ہو۔ اللہ کو ایمان حیدر کرار، حضرت شیر خدا حضرت علی جیسا چاہیے جس میں صداقت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، بہادری بھی ہو، اور ایک مضبوط قسم کا ایمان و قوت و طاقت ہو۔ اللہ کا ایمان حضرت معاویہ جیسا چاہیے، اللہ کو ایمان حضرت عائشہ جیسا چاہیے، اللہ کو ایمان حضرت فاطمہ جیسا چاہیے، اللہ کو ایمان و زندگی حضرت حسین جیسے چاہیے۔ یاد رکھو یہ ایمان کے بنیاد ہے، یہ ایمان کے اساس ہے، یہ ایمان کے معیار ہے۔ اگر تیری زندگی میں نقش صحابہ نہیں ہے، ایمان بے معنی و بے مقصد ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دو لفظ ہے، ایک تخلی، ایک تجلی۔ اس لفظ کو آپ حضرات سمجھیں، ایک تخلی، ایک تجلی۔ اس کو تخلیہ بھی کہتے ہیں اور تجلیہ بھی کہتے ہیں۔ تخلیہ کا معنی خالی کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے، پاکیزہ کر دینا ہے۔ تجلی کا معنی ہے کہ اس کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ میں اس کو ذرا مثال سے سمجھا دوں، شاید آپ کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ یہ دیوار ہے، پہلے اس کی صفائی ہوگی، پہلے اس کا رگڑا ہوگا، پہلے اس سے گند اتاریں گے، پھر اس کے اوپر رنگ چڑھائیں گے۔ پہلے صفائی کو تخلی کہتے ہیں، تخلیہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو رنگ چڑھایا جاتا ہے، جو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو تجلی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کے ذریعے پہلے صحابہ کی تخلی فرما دی ہے، صحابہ کی زندگی کو صاف کر دیا ہے۔ اب صحابہ کی زندگی میں نہ بت پرستی ہوگی، اب صحابہ کی زندگی میں نہ شرک پرستی ہوگی، اب صحابہ کی زندگی میں نہ زنا و شراب ہوگا، اب صحابہ کی زندگی میں نہ بدکاریاں۔ پہلے صحابہ کی زندگی کو پاک کر دیا ہے اور پھر اس پر ایمان کی چادر کو چڑھا کر، ایمان کے اعمال کے چادر کو چڑھا کر صحابہ کی زندگی کو خوبصورت کیا ہے، اور پھر فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ عزیزو، نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی ہے، اور محنت ایک چیز پر کی ہے کہ ایک معیار، نبی کے بعد نبی آتے رہے، آدم کے بعد نوح آئے، شیس آئے، نوح کے بعد پھر حضرت زکریا اور یحییٰ آتے رہے، ان کے بعد یوسف اور یعقوب آتے رہے، ان کے بعد شعیب آتے رہے، ان کے بعد پھر دیگر پیغمبر آتے رہے، پھر حضرت موسیٰ آتے رہے اور عیسیٰ آتے رہے۔ ہر پیغمبر کے بعد نبی آتے رہے، قوم کو ہدایت کے راستے پہ۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو ہدایت کی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستو، ہمارے پیغمبر کے بعد کون سا پیغمبر آیا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ ہمارے رسول کے بعد کون سا رسول آیا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ ہمارا پیغمبر آخری ہے، ہمارا رسول آخری ہے، ہماری کتاب آخری ہے، ہماری امت آخری ہے۔ بابا، جب کتاب آخری ہے، نبی آخری ہے، رسول آخری ہے، تو ہدایت کا مرکز کیا ہوگا؟ فرمایا ہدایت کا مرکز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب ہدایت کا مرکز صحابہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ ہیں، جس کے راستے پہ چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اگر تیرا عمل صحابہ سے نہیں ملتا،
सहाबा की जिंदगी से नहीं मिलती। याद रखो, फिर तेरा अमल बड़ा ही नुकसान वाला है, बड़ा ही मुश्किल है। रमजानुल मुबारक आ रहा है, अपने अमल को सहाबा के नक्श कदम पर डालो। क्यों? वो तबका ऐसा है, सहाबा तबका ऐसा है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के दिलों का इम्तिहान ले लिया है। कुरान है दोस्तों, मेरी तेरी बात नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने सहाबा के ईमान का इम्तिहान लिया है, उनके दिलों का इम्तिहान लिया है। ये इम्तिहान में पास हो चुके हैं, ये इम्तिहान में रिजल्ट में कामयाब हो चुके हैं। और कामयाब तबका हमारा ईमान का मेयार है। कैसा इम्तिहान लिया, अब मैं इस उन्वान को बोलूं तो इस पर भी घंटे लग जाए। कैसा इम्तिहान लिया, कैसा इम्तिहान लिया। वल्लाह एक एक का सीरत, एक एक का सीरत, एक एक का इम्तिहान अगर बयान करना चाहूं, दिन दिन रात रात गुजर जाए। ऐसा इम्तिहान लिया, ऐसे पाकीज़ा हो गए, ऐसे खूबसूरत हो गए, खून में नहला गए, आग में चले गए, टुकड़े हो गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, घर से बेघर हो गए, दर पधर हो गए। कौम छोड़ा, आबादियां छोड़ी, नस्लें छोड़ी, जबानें छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, एक पैगंबर को लिया, एक अल्लाह को लिया। इम्तिहान आते रहे, मुकाबले आते रहे, जुल्म होता रहा, मसाइब होते रहे। खुदा की कसम, एक लम्हे के लिए, एक घंटे के लिए एक सहाबी पीछे नहीं हुआ। कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है, ये इम्तिहान में पास हुआ है। अल्लाह खुद ऐलान करते हैं, उनका रिजल्ट कुरान में मौजूद है। अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब हो चुके हैं। उलाइका हुमुल फाइजून, ये तो कामयाबी फौज वाले हैं। लिहाजा दोस्तों दुनिया के फतवे छोड़ो, आओ अपनी जिंदगी को सहाबा के नक्शे कदम पे ढालो, अपने घर का माहौल सहाबा के घर के माहौल पे ढालो, अपनी जिंदगी में हया सहाबा वाली पैदा करो, वरना कल क़यामत के दिन नमाज भी पढ़कर आए होंगे और वहां पर रुसवाई होगी। कभी कह देता हूँ, कभी आपने ये सोचा कि मेरा ये जो नमाज मैं अदा कर रहा हूँ, क्या ये नमाज अबू बकर की नमाज से मिलती है? क्या ये जो मैं खड़े होकर फजर में ईशा में नमाज पढ़ता हूँ, क्या ये मेरी नमाज हजरत अली की नमाज से मिलती है? क्या ये जो मैं तिजारत कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े ताजिर हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत खदीजा जैसे बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताजिर थे, क्या मेरी तिजारत इनसे मिलती है? क्या मेरी तिजारत में इनकी झलक मौजूद है? अगर नहीं है और कभी आपने कोशिश भी नहीं की है, अल्लाह को अमल पसंद है तो सहाबा का पसंद है, अल्लाह को जिंदगी पसंद है तो सहाबा की पसंद है। हुजूर के कदमों में ऐसे आए, क्या मजालिम किए, क्या जुल्म और जबर हुआ। आज भी जब हम जाते हैं ग़ज़वा उहुद के मैदान पर, जब जाली पे खड़े होते हैं, हमें दूर एक कब्र नजर आती है। किसी आलिम से पूछो, अल्लाह की कसम ये ग़ज़वा उहुद का वो शहीद हजरत मुसअब बिन उमैर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मक्के की सरदारी हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दी थी, जिन्होंने अपने तन के कपड़े हुजूर की मोहब्बत पे कुर्बान कर दी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर पे फना कर दी थी। आओ दोस्तों, इनके नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारो। मैं आज इतना ही कहता हूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब उम्मत की फजर की नमाज जुम्मे की नमाज की तरह हो जाए और जब उम्मत की रातें सहाबा की रातों की तरह हो जाए, तो फिर ये उम्मत कामयाब और कामरान रहेगी, सुकून और राहत से रहेगी। अगर उम्मत की फजर ऐसा हो जैसा आज होता है, सहाबा इस बारिश से, इस ठंडक से, आज तुम्हारा जुम्मा भी जाए, फजर भी जाए, इबादत भी जाए, रात भी जाए, सब चले जाए, फिर कहते हो सहाबा। हुजूर कहता है, अस्हाबी कन नजुम, मेरे सहाबा सितारे हैं, कभी अय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम,
जिस सहाबी के पीछे चलोगे ये सितारा है, तुम्हें रास्ता दिखाएगा, ये सहाबा है तुम्हें निजात दिखाएगा, हिदायत दिखाएगा। ईमान अल्लाह को चाहिए, सहाबा जैसे चाहिए। ये तुम्हारा बाप का ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए जिससे बात कर ओ जी हमारा बाप दादा, हमारे परदादा, हमारा खानदान, हमारा कबीला, हमारा कौम, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारी शहरियत, हमारा। याद रखो ये सारा फना है, न तेरा मुल्क चलेगा, न तेरा खानदान चलेगा, न तेरा कौम और कबीला चलेगा, ये सारा का सारा फना है। अगर बका है तो जिंदगी सहाबा को बका है। तेरे बाप की कोई हैसियत नहीं है, तेरे दादा की कोई हैसियत नहीं है, तेरी कौम की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत अल्लाह की नजर की अबू बकर उमर की है, उस्मान और अली की है, तलहा और जुबैर की है, साद और सईद की है, आयशा और हफ्सा की है। 1.25 लाख सहाबा की इज्जत और एहतराम अल्लाह की नजर में है। तेरे बाप दादा की नहीं चलती, तेरे बाप दादा की बातें नहीं होती। बाप के दादा के रक्शे कदम पे चलकर अबू तालिब, अबू जहल, अबू लहब का नजरिया है। और अगर इस्लाम और कुरान का नजरिया है वो सहाबा इकराम का नजरिया है। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी का तर्ज बदल दो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे। और मैं एक बड़ा सा जुमला कह दूं और इसी पर खत्म कर दूं। सहाबा का नबी के साथ ताल्लुक जो था वो ताल्लुक वो ऐसा ताल्लुक नहीं था, ऐसा रिश्ता नबी के साथ नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर पर हो या सिर्फ और सिर्फ मजाजी तौर पर हो या किसी भी वजूहात की ना जी। सहाबा का नबी के साथ कॉन्टेक्ट, राबिता, ताल्लुक वो इश्क की बुनियाद पर था। बस ये जुमला मेरा आखिरी है, याद कर लेना। सहाबा का नबी के साथ रिश्ता, ताल्लुक, निस्बत, जोड़ वो इश्क की बुनियाद पर था। दुनिया के हालात पर नहीं था, असबाब पर नहीं थे, दीगर लालचों में नहीं था। सहाबा का नबी के साथ इश्क की बुनियाद पर रिश्ता था। और दोस्तों जब इश्क की बुनियाद पर रिश्ता होता है फिर अबू जहल क्या है, ये सुपर ताकतें क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया की लज्जतें क्या है, फिर हजरत खब्बाब की तरह लटक तो सकता है, पैगंबर के दामन को छोड़ नहीं सकता। फिर हजरत खब्बाब खुबैब की तरह टुकड़े तो हो सकता है, हजरत अम्मार की तरह मार तो खा सकता है, हजरत उस्मान की तरह शहीद तो हो सकता है, हजरत हुसैन की तरह और हजरत हुसैन की तरह मैदान करबला को तो सजा सकता है। फिर याद रखो जब रिश्ता इश्क का होता है फिर दुनिया की कोई ताकत बीच में आड़ नहीं बन सकती। इसलिए मैं कहता हूँ नबी का सहाबा के साथ, सहाबा का नबी के साथ जो रिश्ता था, जो ताल्लुक था वो इश्क के बुनियाद पर था। मेरा और तेरा रिश्ता सहाबा के साथ दुनिया के असबाब पर है। याद रखो हमने अपना रिश्ता अल्लाह के साथ भी असबाब पर रखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी असबाब पर रखा है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ भी असबाब पर रखा है। यही तो वजह है अगर कोई सबब बन गया बारिश का, मस्जिदें छोड़ो, अगर कोई सबब बन गया हालात खराब हो गए, अल्लाह को छोड़ो, सजदों को छोड़ो, इबादत को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, नबी के सुन्नत को छोड़ो। ये क्यों? इसलिए कि ताल्लुक जब असबाब पर होता है, नजर जब असबाब पर होता है, दुनिया पर होती है, दुनिया की लज्जतों पर नजर होती है, फिर यही होता है। नबी से भी मोहब्बत करेंगे अपना मफाद देकर, सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे अपना मफाद देकर, नमाज भी पढ़ेंगे अपना मफाद देकर, कुरान भी पढ़ेंगे अपना मफाद देकर। कुर्बान जाऊं सहाबा, कुरान पे 1200 आयतों में तुम्हारा तज़किरा सहाबा का मौजूद है। वो सहाबा का रिश्ता अल्लाह के साथ इश्क का रिश्ता था, हकीकी मोहब्बत का रिश्ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम